Hello CLAT aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor, and this is the day 9th of your legal passage series that we have been doing from past 1 week now. So the topic that I have chosen today is fundamental rights, and I have chosen this topic just because from the past 1 week we have been doing the topics related to the civil rights, but we didn't do any topic related to the constitution. And many of the students messaged me that you are doing contract, you are doing torts and everything, but take some passage of constitution as well, right? So the topic that's what I have chosen today is fully related to the constitution, and that is why I have chosen the topic fundamental rights. What we are going to do is that we are going to read the passage first, interpret it, understand it, what is passage telling us, and then we will also see that how the question that follows up the passage, that how we are going to interpret the questions, and then we are going to how to solve those questions, right? So it's a bit technical passage. All you have to do is that you have to pay careful attention to whatever I say in the passage, and then as we follow the past methods, what we have to do is that after every question I'll give you 3 seconds, and you will solve the questions in your head, and you will let me know in the comment section that how many of you attempted how many right questions. So let's proceed with the passage. The passage is, in 2019, Madras High Court, while dealing with the petition of refugees, observed that they are facing grave threat to their life. What they're saying is कि 2019 में मद्रास हाई कोर्ट के पास एक petition आया जिसमें they were dealing with the issue that the refugees, that means the citizens that are not living in their particular country and have been shifted to some another country, right, are facing some grave threat to their life. They are facing severe मतलब उसको कहते हैं ना कि उनको बहुत खतरा है अपनी लाइफ का, right? Taking this into consideration, the court held that Article 21 of the Constitution of India applies to all persons, citizens and non-citizens alike, including refugees and asylum seekers. वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जो Article 21 है Constitution का, वो हर person पे लगता है. यहाँ पे they are not writing that it applies to citizens. Instead, they are writing that it applies to persons, and persons में हर कोई include होता है, चाहे वो citizen हो, चाहे वो non-citizen हो, and चाहे वो refugees हो, चाहे वो asylum seekers हो, right? Article 21 of the Constitution of India, no person shall be deprived of his or personal liberty except according to the procedure established by law. वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वो ये बोल रहे हैं कि Article 21 of the Constitution of India हमें क्या बताता है? This is what is written in the article कि एक कोई भी person shall not be deprived of his life or personal liberty. ना उसकी लाइफ को कोई खतरा हो सकता है, ना ही उसको अपनी पर्सनल लिबर्टी से रहने का राइट किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी पर्सनल लिबर्टी से ना रह पाए, अपनी मन चाहे तरीके से ना रह पाए, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इस लाइन का मतलब है कि अगर लॉ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना पड़े, तो उस सिचुएशन में ये फंडामेंटल राइट आपका सस्पेंड किया जा सकता है प्रॉपर प्रोसीजर के साथ. अदरवाइज आपको आपका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सरसाइज करने से कोई नहीं रोक सकता. The Supreme Court and National Human Rights Commission versus State of Arunachal Pradesh and another said that the word person in Article 21, which I have circled over here, is not confined only to the citizens but extends to every person regardless of nationality or the circumstances in which a person is placed. वो क्या बोल रहे हैं कि Article 21 में जो word mentioned है person, वो हर चीज को include करता है, चाहे वो नेशनैलिटी हो किसी भी पर्सन की, दैट डजंट मैटर, राइट? और चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में रह रहा है, जस्ट बिकॉज
उसके पास सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ग्रांट नहीं किया जाएगा। उसको ड्यूली पर्सनल लाइफ और अपनी लिबर्टी जो है वो एक्सरसाइज करने को मिलेगी। मूविंग फर्दर विद द पैसेज, the Supreme Court interpreted Article 21 of the Constitution of India through various judgments and said that the state should not violate the fundamental rights of the individual। वो क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही केस नहीं था जो अभी हमने पीछे देखा था, that was NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बट दे आर सेइंग कि ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया और स्टेट को ये गाइड किया कि आप किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट सप्रेस नहीं कर सकते। The Supreme Court included various rights and some of them are as follows। उन्होंने क्या बोला कि इसी आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में जहां राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, वहां पर इसी आर्टिकल में ये वाले राइट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। और वो कौन से राइट्स हैं? द फर्स्ट वन इज राइट टू हेल्थ विद प्रॉपर एंड अफोर्डेबल फैसिलिटी इज अ फंडामेंटल राइट। क्या बोल रहे हैं कि आप एक अच्छी हेल्थ में रहते हो, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं इन द हॉस्पिटल्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर फैसिलिटीज यू ऑल्सो गेट अफोर्डेबल फैसिलिटीज, दैट इज योर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग to Article 21, that right to life and personal liberty. Second one is right to clean environment. What they are saying is कि right to clean environment is also a fundamental right in Article 21 of the Constitution, कि आपको एक clean environment में रहने की, pollution free environment में रहने का भी आपका right fundamental है और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। The third one is right to live with dignity। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जीने का हक नहीं मिल रहा है, आपको एक dignity के साथ, आपको पूरी अपनी अच्छी रेप्यूटेशन के साथ आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट मिल रहा है इन दिस फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन मतलब कि आपको बिना किसी कॉज के डिटेन कर लिया मतलब आपको अरेस्ट कर लिया या कुछ भी, तो आप इलीगल डिटेंशन से भी बच सकते हो अंडर दिस article, right? Moving further, they are giving two notes to us in this passage. This is note 1 and this is note 2. What they are saying कि अब वो बता रहे हैं कि स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, यानी कि आर्टिकल 21 में जो वर्ड स्टेट लिखा है उस स्टेट में कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंक्लूड की जाएंगी। स्टेट में आपकी ये 6 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। द फर्स्ट वन एंड द वेरी बेसिक, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप स्टेट किसको बोलते हो? जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कराते हो तो आप किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टेट मानते हो? यूजुअली आपके दिमाग में यही आंसर आएगा कि गवर्नमेंट जो हमारे लिए लॉज बनाती है वही हमारी स्टेट होगी। बट यस, यू आर राइट, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो हमारी स्टेट है ही है, उसके अलावा हमारी ये भी जो चीजें हैं वो भी हमारी स्टेट में काउंट होंगी। द सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। अब यहां पर वो कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? जो इंडिया में स्टेट्स हैं, जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, यानी कि हरियाणा, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, उन स्टेट्स का मतलब यहां पे बोला गया है कि उनकी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है और उनका जो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर है वो भी हमारा इस स्टेट में काउंट किया जाएगा। द थर्ड वन इज लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। जो लोकल हमारी अथॉरिटीज हैं, जो हमारे कमीशंस हैं, जो हमारे लोकल बॉडीज, जो हमारे लोकल एरिया को गवर्न करती हैं, वो वाली भी स्टेट में इंक्लूड की जाएंगी। द fourth one is the financial assistance given by the state and magnitude of such that। क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस एक स्टेट को उसके लोगों को मिलती है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इस स्टेट में इंक्लूड की जाएगी। द फिफ्थ वन इज द फंक्शंस कैरिड आउट बाय द कॉर्पोरेशन वेदर पब्लिक फंक्शंस क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंटल फंक्शंस। वो क्या बोल रहे हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं और जो पब्लिक फंक्शंस कैरी करती है वो कॉर्पोरेशंस,
वो अगर क्लोजली रिलेटेड है गवर्नमेंटल फंक्शन से रिलेटेड, तो वो फंक्शंस भी इंक्लूड होंगे इस स्टेट वर्ड में, राइट। सिक्स्थ ऑप्शन वो आपको बोल रहे हैं डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अगर कोई भी ऐसी जगह जहां पर शायद गवर्नमेंटल रूल ना हो, बट वहां पर जो पूरा डीप और परवेसिव रूल है, जो कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट का ही चल रहा है, वो स्टेट का ही चल रहा है, तो वो भी इंक्लूड होगा किसमें, इस वर्ड स्टेट में, राइट। वो सेकेंड नोट हमें क्या दे रहे हैं, सेकेंड नोट में वो हमें एक डेफिनेशन दे रहे हैं कौन से वर्ड की, पैरीमेटेरिया, ठीक है। दिस इज अ न्यू लीगल मैक्सिम जो आप यहां से समझ सकते हो, जो आपको शायद याद रहे। पैरीमेटेरिया का क्या मतलब होता है, मींस व्हेन टू प्रोविजंस ऑफ टू डिफरेंट स्टैट्यूट्स डील विद द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर दो स्टेट्स हैं या दो स्टैट्यूट्स हैं, अगर वो दो अलग अलग स्टैट्यूट्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो सेम सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहे हैं और अगर उनका कोई भी प्रोविजन सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, तो हम बोलेंगे या तो द टू statutes are perimeteria to each other, या फिर हम बोलेंगे that particular provision is perimeteria to each other. That means the two provisions are dealing with the same subject matter. ठीक है, तो perimeteria का in hand meaning आपके पास क्या आया, two provisions or two statutes that are dealing with their same subject matter, right? Now this was the passage and now we are going to proceed with the questions. हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसके ऑप्शंस को समझेंगे, and then we will see that when I give you 3 seconds तो आप उसका सही आंसर गेस कर पाते हो या नहीं. So let's proceed with the first question. मोनोसिया एंड कंटोरा आर कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. एशिया की दो कंट्रीज का नाम वो आपको बता रहे हैं, मोनोसिया एंड कंटोरा. बोथ कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट. दोनों कंट्रीज के बीच में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, यानी कि एक वॉर टाइप सिचुएशन है. रोहिंग्या, अ कम्युनिटी लिविंग इन मोनोसिया, गेट परसिक्यूटेड फॉर देयर कंट्री टू द कंट्री सिंधिया. वो क्या बोल रहे हैं कि मोनोसिया कंट्री में रहने वाली एक कम्युनिटी दैट इज रोहिंग्या एक दूसरी कंट्री में शिफ्ट की जा रही है और उस कंट्री का नाम क्या है, सिंधिया. द गवर्नमेंट ऑफ सिंधिया हैज गिवन द रिफ्यूजी स्टेटस टू द रोहिंग्या कम्युनिटी. अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये सिंधिया जो कंट्री है, इसकी गवर्नमेंट ने इस रोहिंग्या कम्युनिटी को रेफ्यूजी का स्टेटस दे दिया है. अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हु इज प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन टू द रोहिंग्या कम्युनिटी बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज एंड एडिक्वेट अमाउंट of food due to which 4 persons died. वो क्या बोल रहे हैं कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इस रोहिंग्या कम्युनिटी को रहने के लिए जगह तो दे दी, बट उनको ना तो हेल्थ फैसिलिटीज दी, ना एडिक्वेट खाना दिया, जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई, राइट. Suhana, a human rights activist, approached the Supreme Court for the violation of Article 21 of the Constitution. अब वो क्या बोल रहे हैं, सुहाना नाम की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया इस रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए कि उनका आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है. डिसाइड वेदर द रोहिंग्या कम्युनिटी शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंधिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या बोल रहे हैं कि हमें ये डिसाइड करना है कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट को इस रोहिंग्या कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें वो एक साथ में एक नोट दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पैरीमेटेरिया टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो क्या बोल रहे हैं कि हमें ये एज्यूम करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम है. दैट मीन्स कि उन पे भी आर्टिकल 21 ही लगता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, तो दीज आर योर 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज रोहिंग्या कम्युनिटी शुड बी प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंधिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कह रहे हैं कि हाँ, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अंडर आर्टिकल 21. सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं रोहिंग्या कम्युनिटी शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंधिया अंडर आर्टिकल 21. कह रहे हैं कि नहीं, प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए.
थर्ड ऑप्शन वो बोल रहे हैं रोहिंग्या कम्युनिटी शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिफ्यूजीज आर नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ सिंधिया। क्या बोल रहे हैं कि रिफ्यूजीज को सिटीजन्स नहीं माना जा सकता, इसलिए आर्टिकल 21 सिंधिया वाली कम्युनिटी, सिंधिया की कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं लगेगा। Fourth option, Rohingya community as a citizen of Sindhya should be protected by the government of Sindhya under Article 21 of the Constitution। वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या कम्युनिटी को आप सिटीजन मानो सिंधिया का और फिर उनको प्रोटेक्शन दिलाओ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमने पैसेज में क्लियरली पढ़ा था कि यहाँ पर जो आर्टिकल 21 लगता है वो नेशनैलिटी से अलग लगता है, यानी कि नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। ठीक है, तो सिटीजनशिप वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो वर्ड मेंशन है वो है पर्सन, ना कि सिटीजन, इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन ए, बी एंड डी एंड नाउ यू हैव 3 seconds टू गेस द राइट आंसर। Not a very difficult question. I think you can easily answer this. And by now, I have thought of the fact that you must have guessed the answer right. And yes, A is the right answer. यहाँ पे हमें क्लियरली नोट मिला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पैरी मटीरियल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो क्या बोल रहे हैं कि जो पैरी मटीरियल फ्रेज है जो हमने हमारे पैसेज में पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल 21 बताता है वही सेम प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे लगेगा। एंड अगर आर्टिकल 21 के हिसाब से रोहिंग्या कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। Now moving further to the second question, on 7th January 2022, a UFO landed in the village Skontos in Skindia। वो क्या बोल रहे हैं कि 2022 जनवरी में क्या हुआ, एक UFO लैंड हुआ स्कॉन्टस विलेज में जो एक सिंधिया कंट्री में है। 3 aliens XYZ is not able to return to their planet because of technical problem in the UFO। वो क्या बोल रहे हैं कि जो 3 aliens हैं उस UFO में वो XYZ वो अपनी कंट्री वापस नहीं जा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके UFO में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। रास्ट्रो, अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टेड रिसर्च एंड इंक्वायरी ऑन द 3 aliens बाय टॉर्चर एंड कटिंग देयर पार्ट्स। अब रास्ट्रो नाम के एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि उन 3 aliens पे इंक्वायरी करना शुरू कर दिया, उनको टॉर्चर करके और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको काट के। ठीक है, SOS is an organization, SOS is an NGO approached the Supreme Court for the protection of 3 aliens under Article 21 of the Constitution। वो क्या बोल रहे हैं कि एक SOS नाम की NGO ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इन एलियंस को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, decide whether XYZ are entitled to the protection under Article 21 of the Constitution of India। वो क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडिया के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है। वही सेम नोट दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पैरी मटीरियल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सेम नोट हमें उन्होंने पिछले क्वेश्चन में दिया था, दैट इज द सेम नोट दैट दे आर गिविंग here। The 4 options are, the first one, X and Y and Z are entitled to protection, कि protection मिलनी चाहिए। B option, are not entitled to protection, protection नहीं मिलनी चाहिए। Third option, X, Y and Z are entitled to protection under Article 21 of the Constitution of India, but only from cutting their parts। वो कह रहे हैं कि हाँ प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए लेकिन सिर्फ बॉडी पार्ट्स ना काटे उसकी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और वो बोल रहे हैं सेम इसमें कि प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए बट सिर्फ टॉर्चर से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो दीज 2 ऑप्शंस हमारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, क्योंकि प्रोटेक्शन मिलेगी तो पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, सिर्फ टॉर्चर से या कटिंग देयर बॉडी पार्ट से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। राइट, सो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन A एंड B।
एंड दोनों में से जो भी आंसर हो आपका, आपको पहले सोचना है कि क्यों वो आंसर सही है, बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड यू हैव टू थिंक दैट व्हाट विल बी द राइट आंसर. Take 3 seconds and decide the answer. Again, I'm telling you that it's a tricky question. When you will see the answer, you will say, oh, how can this be the answer? मुझे लगता है सबने ए ही सोचा होगा, है ना, कि ए विल बी द राइट आंसर, कि प्रोटेक्शन तो मिलेगी. But no, they will not be granted the protection against Article 21 of the Constitution. और अगर आपने बी ही आंसर सोचा था तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि इसका रीजन क्या होना चाहिए. रीजन तो एनी हाउ मैं आपको बताने वाली हूँ, बट चेक इफ योर आंसर, इफ योर थॉट वाज राइट. एंड उनको प्रोटेक्शन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आर्टिकल 21 एलियंस को प्रोटेक्शन नहीं देता, वो सिर्फ सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को प्रोटेक्शन देता है. वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है डिस्पाइट नोइंग देयर नेशनैलिटी, बट वो एलियंस को प्रोटेक्शन नहीं देता. एंड इसीलिए जो एलियंस हैं यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, उनको आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. फाइन, सो यू हैव टू थिंक इट दैट वे. इसीलिए आपके शायद लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत होते हैं when you don't read the concepts right. Fine, moving with the third question. Rajneesh and Switank are neighbors in Bolivari, Sindhya. अब वो क्या बोल रहे हैं, रजनीश और स्विटैंक दो नेबर्स हैं जो बोलीवरी में रहते हैं, सिंधिया कंट्री में ही. रजनीश ऑलवेज यूज्ड टू थ्रो हिज गार्बेज इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ स्विटैंक. वो क्या बोल रहे हैं, जो रजनीश है वो स्विटैंक के घर के बाहर गार्बेज फेंक देता है. जो स्विटैंक फेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक फॉल स्मेल, ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज एक्सेट्रा. अब जो स्विटैंक है उसको इससे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि फॉल स्मेल मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है उस गार्बेज से, मस्कीटोज ब्रीड होते हैं उस गार्बेज पे, जिसकी वजह से स्विटैंक को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं. ड्यू टू स्विटैंक अप्रोच द हाई कोर्ट, ड्यू टू दिस स्विटैंक अप्रोच द हाई कोर्ट अगेंस्ट रजनीश फॉर द प्रोटेक्शन एज राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. वो क्या बोल रहे हैं कि अब अपने फंडामेंटल राइट टू क्लीन एनवायरमेंट जो उसको मिलना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए जो स्विटैंक है वो हाई कोर्ट पहुंचा अंडर आर्टिकल 21. डिसाइड अकॉर्डिंगली. अब हमें डिसाइड करना है कि इसका क्या आंसर होगा. अब फिर से वही नोट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पैरी मटेरियल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं. सो दीज आर योर 4 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज स्विटैंक इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द एनवायरमेंट टू द पर्सन इन इट्स कंट्री. वो क्या बोल रहे हैं यहाँ की स्विटैंक को प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उनको राइट टू क्लीन एनवायरमेंट मिले. सेकंड ऑप्शन, स्विटैंक इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड क्लीन एनवायरमेंट टू द पर्सन इन इट्स कंट्री एंड रजनीश शुड बी पनिश्ड फॉर इट्स कंडक्ट. वो कह रहे हैं सेम ऑप्शन दिया है बट बस इसमें ये ऐड कर दिया कि साथ ही साथ रजनीश को उसके जो उसने एक्ट किया है उसकी पनिशमेंट मिलेगी. थर्ड ऑप्शन, बोथ A and B are correctly deducing the rationale of the reasoning. वो कह रहे हैं कि both options are right, A and B both are right, और यहां पर बोल रहे हैं D, none of these. तो आप सोचिए, again a warning, again a tricky question. थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो यू माइट बी एबल टू गेस द आंसर राइट. अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसको ट्रिकी क्वेश्चन क्यों बोल रही है, इट्स प्रिटी सिंपल. तो जब आप आंसर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिकी क्यों है. जस्ट टेक 3 seconds एंड थिंक ऑफ द आंसर. So I think you must have guessed either one of these, but yes, the answer is D. And none of the 3 options are correct. Just because you haven't read the passage right, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो किसके अगेंस्ट मिलते हैं, वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, ना कि हमें सिविल राइट्स. यानी कि 2 लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर कंसिडर्ड नहीं होगा. जस्ट बिकॉज
जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना इन्फोर्स कराते हो वो आप किसके अंडर, किसके अगेंस्ट कराते हो, वो स्टेट के अगेंस्ट आप केस फाइल करते हो और तब आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है। इसीलिए दो पर्सन्स जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो आपका स्टेट में कंसिडर नहीं होगा। जो स्टीवैंक है वो एक स्टेट पार्टी नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज इज द राइट answer. So moving to the next question. Question number 4. In the time of COVID-19, several persons were suffering from COVID-19 all over Sindhya. वो क्या बोल रहे हैं, सिंधिया कंट्री में भी COVID-19 वाली बीमारी फैली। Siharan is a state in Sindhya and government hospital in Siharan are fully occupied with COVID-19 patients, due to which several patients are moving to the private hospital. सिहारन में भी COVID-19 फैलने की वजह से जो वहां के जो हॉस्पिटल्स थे वो फुल्ली ऑक्यूपाइड थे। कौन से हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फुल्ली ऑक्यूपाइड थे, इसीलिए वहां के लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा। जथुराबाई हॉस्पिटल इज ओनली द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड हैज 7 ब्रांचेस इन द स्टेट ऑफ सिहारन। वो क्या बोल रहे हैं, जथुराबाई हॉस्पिटल नाम का एक प्राइवेट हॉस्पिटल, उसकी 7 ब्रांचेस हैं जो सिहारन स्टेट में पूरी फैली हुई है। दे हैव एडमिटेड मेनी COVID-19 पेशेंट्स, उन्होंने बहुत COVID-19 पेशेंट्स को एडमिट किया हुआ है। ड्यू टू हेवी एडमिशन ऑफ पेशेंट्स, Jathurabai Hospital has increased the price of admission fee, medicine fee and equipment fee or health facilities prices in the hospital. Because of these, many poor persons are not able to afford the prices of the private hospital. वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट होने की वजह से जो ये जथुराबाई प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसने अपनी एडमिशन फीस, फूड फीस, पेशेंट फीस, मेडिकल फीस सारी बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एंड सम ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ COVID-19, और उसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। Sushma, a human rights activist, approached the Supreme Court on behalf of these poor persons for their protection, as right to health is a fundamental right. वो क्या कह रहे हैं कि अब जो सुषमा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो इन पुअर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई और उनका राइट टू हेल्थ उसको एनफोर्स कराना था अंडर आर्टिकल 21। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि क्या सही ऑप्शन होगा। वो हमें सेम नोट दे रहे हैं कि वही पैरीमेटीरिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिंधिया टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, द सुप्रीम कोर्ट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पुअर पर्संस एज जथुराबाई हॉस्पिटल इज डूइंग पब्लिक फंक्शन। वो कह रहे हैं कि हाँ, प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि जथुराबाई हॉस्पिटल एक पब्लिक फंक्शन कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन, जथुराबाई इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड इज अ स्टेट, सो द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल तो है बट ये स्टेट में काउंट किया जाएगा, इसीलिए प्रोटेक्शन मिलेगी। थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर डिड्यूसिंग द करेक्ट रैशनल फॉर दिस रीजनिंग, कह रहे हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, जथुराबाई इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड इज नॉट अ स्टेट, सो द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट स्टेट। वो कह रहे हैं कि जथुराबाई हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको स्टेट में काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। नाउ यू हैव to decide amongst these 3-4 options. 3 seconds. Pretty simple question. And yes, option C is right. That both A and B are correct. हालांकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है बट उसको स्टेट की तरह एक्ट किया जाएगा क्योंकि वो बहुत मेजर गवर्नमेंटल फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसने अगर कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया हुआ है तो वो उस मोमेंट पे जो एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो कोविड की वजह से आई है, तो वो एक गवर्नमेंटल फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए A and B both are correct and that is why C becomes our right answer. Fine. Moving to the last question of this passage. Bolivary is a state in Sindhya. The National Environment Survey shows that Bolivary has the highest pollution level in Sindhya. वो क्या बोल रहे हैं? बोलीवरी सिंधिया में एक स्टेट है और उसका पोल्यूशन लेवल सबसे हाईएस्ट है सिंधिया में। There are different factors responsible. क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? 60% फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फार्म स्टेबल 23%, फायर क्रैकर्स 13%, others 4%. The government is getting 20% of the revenue from firecrackers in the time of Diwali and New Year.
ईयर। वो क्या बोल रहे हैं कि पटाखे बेचने की वजह से जो 20% रेवेन्यू है गवर्नमेंट का दिवाली और न्यू ईयर के टाइम पे वो फायर क्रैकर्स वाली फैक्ट्री से आता है। एक्स अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द बैन ऑफ फायर क्रैकर्स। अब एक्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि इस पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए फायर क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए। अब हमें बताना है वेदर एक्स इज एंटाइटल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या एक्स को ये फंडामेंटल राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहां नोट क्या दे रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट पैरी मटीरिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो क्या बोल रहे हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों के जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे डील नहीं कर रहे हैं, आप उनको सेम ट्रीट नहीं करोगे। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। First one, the Supreme Court should ban the firecrackers. The Supreme Court should not ban the firecrackers. The Supreme Court should provide guidelines for using the selling of firecrackers. कि Supreme Court को एक proper guideline बता देनी चाहिए। और fourth option, cannot be determined. Again a simple question. अगर आपने किसी भी तरीके से ये सोचा था कि फायर क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए, देन दिस विल नॉट बी योर राइट आंसर। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें जो नोट दे दिया उन्होंने कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट पैरी मटीरियल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमें इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस तो पता ही नहीं, ना हमें वो क्वेश्चन में दिए हुए, तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें इंडिया कंट्री के प्रोविजंस के बारे में नहीं पता। एंड इफ वी डोंट नो अबाउट द प्रोविजंस देन हाउ कैन वी से कि फायर क्रैकर्स बैन होने चाहिए या नहीं बैन होने चाहिए। वी कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर टू दिस question. So this was your passage 9 and I hope you liked the passage. It was a bit tricky one. I will be back with such passages and we will continue the series till 25 days. Thank you so much, and if you want to enroll with us at iConta for your CLAT preparation for either 2025 batch or if you are in class 11th right now and you want to pursue CLAT for the next year, then you can also enroll us with the 2026 batch, and for all the details you can log in into iconta.in/clat, and here I'm signing off and I'll see you in the next passage. Thank you.